آج ہم ہر گھوڑے نچانے والے کو، کتے لڑانے والے کو، اور بختے لڑانے والے کو، اور کشتیاں کرانے والے کو ہم نے ولی سمجھا ہوا ہے، اور ننگے دھڑنگے ڈھول ڈھمکے اور میلے ٹھیلے کروانے والے، داڑیاں بھی پوری نہیں اور نماز تک نہیں ان کو آتی، اور اپنے آپ کے ساتھ القاب بقیت السلف والخلف پتہ نہیں کیا کیا لکھوا دیتے ہیں، شیخ المشائخ، زبدۃ العارفین، محقق المدرسین، تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، آتی جاتی شاہی کوئی نہیں ہے۔ بندے کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی خاص فیس نہیں ہے، عادتیں ہیں۔ دیکھو اگر وہ عادتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کہ یعنی اس کے نزول میں بھی شک نہیں، اس کے کلام اللہ ہونے میں بھی شک نہیں، جبریل امین نے کسی ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں کیا، پورا پورا نازل کیا ہے، اور ہمارے محبوب نے بھی پورا پورا سنایا ہے، اور آگے صحابہ نے بھی پورا پورا لکھا ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب یہ ہے اس کے وجہ نزول، اس کو نازل کیوں کیا گیا کہ یہ صاحبان تقوی کو ہدایت دیتی ہے۔ کن کو ہدایت دیتی ہے؟ تقوی والوں کو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث ما امرک۔ حضرت ابی بن کعب الاحبار مختلف صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ بڑے بڑے گناہوں سے اگر بندہ بچ جائے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید چوتھے پارے میں سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا، شرک کرنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اور رشوت لینا، سود کھانا، سود کھلانا، سود پر گواہ بننا، اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں فرمایا تم بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو میں تمہارے چھوٹے بھی معاف کر دوں گا۔ تم بڑے چھوڑ دو میں تمہارے چھوٹے بھی، چھوٹے معافی، چھوٹوں کے معاف ہونے کا بڑا طریقہ ہے، کیا ہے؟ بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اب جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں نا ان دو نمازوں کے درمیان، تو نمازی جب نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے سے، کلی کرنے سے، منہ کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، آنکھوں تک کے، مسح کرنے سے کانوں تک کے، اور ہاتھ دھونے سے ناخنوں تک کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، پورا جسم ہی صاف ہو گیا۔ یہ پورا جسم صاف ہوتا ہے چھوٹے گناہوں سے۔ یہ کس گناہ سے صاف ہوا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ دھل گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ دھل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے مسکرا پڑے، تو آپ اپنے غلام سے کہتے ہیں، عمران سے کہتے ہیں، پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ علی جا امیر المومنین آقا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ میں وضو کر رہا ہوں، اسی جگہ پہ کبھی میرے مصطفیٰ نے بھی وضو کیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام بھی وضو کرنے کے بعد مسکرا پڑے تھے، تو میں تو حضور کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اور حضور نے بھی یہی پوچھا تھا، پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ تو ہم نے کہا آقا آپ جانے آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اللہ رب العالمین میرے اس امتی کے چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے کے ہاتھوں کے، مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اس لیے مسکرائے کہ میری امت کے لیے کتنے کتنے اللہ نے سامان پیدا فرمائے۔ اب یہ تو صرف وضو کیا، پھر جب وہ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، پھر وسجد واقترب، وہ جتنا قریب ہوتا جائے گا، جتنا جھکتا جائے گا اتنا رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ صاحبان، ویسے تو پوری دنیا کو ہدایت دیتا ہے، جو بھی ہدایت لینا چاہے۔ سائنسدان اس سے سائنٹیفک مسئلے نکال لے گا، میڈیکل ڈاکٹر اس سے میڈیکل کے فارمولے نکال لے گا، اصول نکال لے گا، اس کے اندر جو ہے وہ طب کے بھی مسائل ہیں، ہر چیز مسئلہ، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی خشک تر ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی ہے تو اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں رکھا۔ صرف کیا ہے کہ بندہ غور و خوض کرے تو اسے موتی ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، انگریز سائنسدان، جب انہوں نے ریسرچ کی اور مختلف ان غیبی خبروں کی طرف کھوج میں نکلے تو وہ بھی کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ موریس بکائے ایک بڑا نام ہے، ڈاکٹر موریس بکائے، اور کرسچن تھا، سائنسدان تھا۔ اس کو ممی ملی، وہ لاش جو فرعون کی، اس نے تحقیق کی اس پہ، تو جب تحقیق کی تو
3000 साल पहले ये वाक़या हो चुका था। उसने फिर उस लाश के मुख्तलिफ हिस्से लिए और उसमें रिसर्च की, तो उसे फिर पता चला कि ये तो वही लाश है जो कभी सदियों पहले पानी में डूबी थी, और पानी में जो डूबी हुई लाश है उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, फिरौन का, हम तुझे निकालेंगे और पिछलों के लिए इबरत बना देंगे। तो वो फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फिर उसने एक किताब लिखी, साइंस, बाइबल और कुरान, ये आप खरीदें, उसका मुतालिया करें, बड़ा नफामंद किताब है ये। और ये गैर मुस्लिमों को दावत इस्लाम देने वाली एक किताब है कि किस तरह इस्लाम ने इन चीज़ों को, उसने कहा बाइबल ने तो बिल्कुल टच भी नहीं किया साइंसी उलूम की तरफ, ये पहले है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा हुआ कुरान जिसने हर इल्म के दरवाजे खोल के रख दिए। फिर ये हुदल नास है, ये क्या है? हुदल नास है, शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल नास। ये पूरी दुनिया का कोई काफिर हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हर एक को उसके अपने शोबे में हदायत देती है, लेकिन कामिल हदायत जो रब वाली हदायत है वो सिर्फ हुदल मुत्तकीन, मुत्तकियों को देती है। यदि इससे फायदा कौन उठाते हैं? क्योंकि साइंस असल मकसद नहीं है अल्लाह का, रियाजी असल मकसद नहीं। मकसद क्या है कि बंदा जो गुनाहगार है, जो रब से टूटा हुआ है, वो रब से जुड़ जाए। तो ये रब से मिलाने वाली किताब है। माशाअल्लाह, चले बैठे बैठे बैठे। अच्छा, अब अगली बात सुनिए, ये क्या करती है? हदायत देती है किनको? तकवा वालों को। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, तकवा वालों को। अब तकवा क्या है? अत्तकवा अल्लाह यराकल्लाहु हैसु नहाका वला यफ्कुदुका हैसु मा अमरक, हर उस काम से बचना जिससे मौला नाराज हो जाए, हर उस काम से बचना जिससे मौला नाराज हो जाए, और हर वो काम करना जिससे मौला खुश हो जाए। ये सादा सी तारीफ है। ये क्या है? तकवा। तो गोया दूसरे लफ्जों में आप यूं कह ले कि ये वली बनाने वाली किताब है। क्या बनाने वाली है? वली। बंदे को उठाती है, वली बना देती है। इससे जो जुड़ता है, इस पर जो अमल करता है, बाकी कोई निसाब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं सूफी बनना चाहता हूं, कौन सा निसाब पढ़ूं। आप सूफी बनना चाहते हैं, आप कुरान पढ़ें, आप पूरे अमर निकालें कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, वो सारे अमर निकाल लें। अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया, आप वो करें। अल्लाह ने मुझे इससे रोका, इससे रोका, इससे, आप वो भी मनाही भी निकाल लें, उससे बाज आ जाए, आप वली बन जाएंगे। हजरत अब्दुल मलिक तूसी, निजामुल मलिक तूसी, ये सबसे पहले वो बंदा है जिसने बगदाद मुअल्ला में, बगदाद शरीफ के अंदर जामिया निजामिया बनाया। ये निजाम जो दरस निजामी का निसाब है, ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। निजामुल मलिक तूसी ये गवर्नर था इराक का। तो ये आया, इसने दौरा किया बहुत वसी, जिस तरह जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी, इस तरह बगदाद की एक यूनिवर्सिटी है। तो आया, इसने दौरा किया और मुख्तलिफ तलबा से पूछा, भाई आप पढ़ के क्या बनना चाहते हैं, आपके पढ़ने की गरज क्या है, आप यहाँ क्यों दाखिल हुए हैं? तो किसी ने कहा मैं इसलिए दाखिल हुआ हूँ कि मैं पढ़ पढ़ के शहर का बड़ा काजी बन जाऊँ, मैं सामुरा का काजी बन जाऊँ, मैं फलां जो जिस इलाके से आया था मैं वहाँ का काजी बन जाऊँ, मैं मूसल का काजी बन जाऊँ, हलब का काजी बन जाऊँ, मैं दमिश्क का काजी बन जाऊँ। अच्छा, मैं जी मुफ्ती आजम बनना चाहता हूँ, मैं फलां बनना चाहता हूँ, मैं फलां बनना चाहता हूँ। इसने सभी का इंटरव्यू लिया, दिल बुझ गया कि ये तो सारे दुनियादार हैं, और मैंने तो मदरसा खोला था, यहाँ कोई अल्लाह वाला भी बन जाए। वो निकलने लगा और इरादा कर लिया कि आइंदा फंडिंग बंद कर दूंगा, जहां से तो दुनियादारी पैदा हो रही है। लेकिन निकलते निकलते उसकी एक 10-12 साल के बच्चे पे नजर पड़ गई और वो मुतालिया कर रहा था। तो उसने दिल में सोचा चले इससे भी पूछ लेता हूँ। उसने कहा, ए बेटे, बच्चे बता तू क्यों पढ़ना चाहता है, इस जामिया में क्यों दाखिल हुआ है? तो उसने आंख उठाए बगैर कहा कि चाचा जी मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, ये भी नहीं देखा कि गवर्नर है कि कौन है, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि अल्लाह ने मुझे किन किन बातों से रोका है ताकि मैं रुक जाऊं, और किन किन बातों के करने का हुक्म दिया ताकि मैं करूं और मैं रब का प्यारा हो जाऊं। निजामुल मलिक तूसी गवर्नर इराक का कहने लगा, चलो जहां एक हीरा है मदरसे को क्या कराना है, उस एक हीरे की वजह से मदरसा कायम रखा। वो हीरा कौन था? जो बाहर निकला, पढ़ के निकला तो वक्त का इमाम गजाली बना, इमाम गजाली, अल्लाह अकबर। और उसी मदरसे में फिर पढ़े हजरत शेखुल इस्लाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभान। तो मदरसा आपने बनाया, जामिया बनाया, सारे दुनियादार ने, कोई बीच में ऐसा भी होता है कि जिसका ताल्लुक किससे होता है? अल्लाह से होता है, जो महज इसलिए आता है कि मुझसे मेरा खुदा राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए। तो हुदल लिल मुत्तकीन, वाकई जिन्होंने इस नीयत से पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान तक भी पहुंचाया। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सैयारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा।
हम असल में हम अपने असलाफ से कट गए हैं। हमारे असलाफ क्या थे? वो एक एक लम्हे पे गौर करते थे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाया तो 60 साल से ऊपर 72-75 साल के हो गए। तो उन्होंने कहा, अपने आप से कहा कि नाबालगी के तो 12 साल मैं निकाल लूं, पीछे मेरे बचे हैं 60 साल। अगर मैं 60 साल को ज़रब दूं 355 से, इतने दिन बनते। अगर मैं हर दिन में एक गुनाह करूं, मैंने तो हजारों गुनाह कर लिए। इसी खौफ से वो फौत हो गए। एक दिन में एक गुनाह। हम तो कदम कदम पे गुनाह कर रहे हैं, कदम कदम पे गुनाह। हमारे दिल जो है वो हसद से भरे हुए हैं, हमारे दिल जो है वो कीने और बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक ने फरमाया, अनस या बुनैया या उनैस, हो ऐ छोटे उनैस, है मेरे बेटे, एक बात याद रखना, अपने दिल में किसी का कीना ना रखना। अपने दिल में किसी का कीना, मेरे हुजूर के दिल में किसी का कीना नहीं था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर ने तो ताइफ वालों को भी दुआएं दी हैं, जिन्होंने पत्थर मारे थे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और वो पत्थर 1-2 पत्थर नहीं मारे, या 5, 7 और 10 पत्थर नहीं उठाए। वो उबाश नौजवान वो पीछे लग गए, पत्थर उठा उठा के मार रहे थे, पत्थर उठा उठा के मार रहे थे। और आका करीम कभी बैठ रहे थे, कभी उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी उठ रहे थे। हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी अपनी ज़ियाउल नबी शरीफ के अंदर लिखते हैं कि 4 मील तक हुजूर के साथ उन्होंने ऐसे किया, और तो लहान हो गया पूरा जिस्म मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का। ज़ैद बिन हारिसा साथ है, कहते हैं आका इन पर दुआए ज़रर कर दें, इनको बुरी दुआ दे दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़ैद हाथ उठाओ। कहते हैं मैंने हाथ उठाए तो हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा हदि कौमी ला यअलमून, अल्लाह मेरी ये कौम मुझे नहीं जानती, इनको हिदायत अता कर दे। एक आदमी मुझे कहने लगा, जी इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया वाली आयत पढ़ी, अखे हम भी नबी पाक जैसे होते हैं। मैंने कहा मुकाम मर्तबा तो वराउल वरार है, मैं हुजूर का नहीं जानता। चले इस तरह कर, जरा बाजार से गुजर, 4 लड़के मैं तेरे पीछे लगाता हूँ, तुझे पत्थर मारते हैं, जरा चौथा पत्थर बर्दाश्त करके दुआ देना ना, तुझे लग पता जाएगा कि तू कहाँ है और वो आमीना का चांद कहाँ है। सब्र की इंतहा की मुस्तफा जाने रहमत। ग़ज़वा उहद के मौके पर जब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को जख्म लगे, हुजूर की लबे अतहर पे उस वक्त भी बद्दुआ नहीं थी, दुआए ज़रा नहीं थी, बल्कि एक जुमला था, ये कौम कैसी हिदायत पाएगी, पा जाएगी जो अपने नबी को तंग कर रही है। बस ये जुमला था, ये कौम कैसे हिदायत पाएगी जो अपने नबी को तंग कर रही है। एक काफिर ने आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ पत्थर फेंका। आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तू कलिमा पढ़े तो मैं पत्थर भी तुझे माफ करता हूं। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु बदला लेने आए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, शिकार के लिए गए, वापस आए तो 2-4 औरतें बातें कर रही थी। आज अबू जहल ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बड़ा मारा, तंग किया है, गालियां बकी हैं। हजरत अमीर हमजा का खून खोल गया। आप फौरन आए, वो हरम में बैठा हुआ था बदबख्त, आते ही उसके सर पे कमान दे मारी। फिर हजरत अमीर हमजा तो फिर शेर खुदा थे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा था ना। आए हुजूर के पास, कहा भतीजे मैंने तेरे जो मारने वाले को मारा है और मैंने तेरा बदला ले लिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम के जुमलों पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया, चचा बदला नहीं पूरा हुआ, अगर बदला पूरा करना है तो कलमा पढ़ कर मुसलमान हो जाए। पत्थर मारन वाले अकारा जे मेरे वल्लावे, पत्थर मारन वाले अकारा जे मेरे वल्लावे, कलमा पढ़ मोहम्मद अरबी सीधा जन्नत जावे। हुजूर एक एक को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, जहन्नुम से निकाल रहे हैं, तू भी बच जा, तू भी बच जा। वो अब वादी ताइफ में मकामे जब वो अंगूरों का बाग आया कि जहां अदास था, ईसाई था और गुलाम था, और उतबा शैबा का गुलाम था। उतबा शैबा मक्के के चौधरियों का वो गुलाम था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बाग के चश्मे में अपने जख्मों को साफ कर रहे हैं, तो उसने देखा, वो करीब आ गया, अंगूरों का कुछ खोशा लाया, आप मुसाफिर मालूम होते, ये भी ले लें। तो उसने आते ही पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम। अंदाजा फरमाया, हुजूर उसे सलाम कर रहे हैं। वो हैरान हो गया, कहने लगा इस अरब के अंदर भी कोई सलाम करने वाला है? यानी हर तरफ बुत परस्ती है, हर तरफ जो है वो बुतों की पूजा करने वाले लोग, और अस्सलामु अलैकुम ये तो नबियों का तरीका है, ये तो नबियों की तालीम है। उसने कहा कि आप सलाम करते हैं? आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कहां से आए हो? उसने कहा, जी मैं नैनवा इराक से आया हूं। फरमाया, अच्छा मेरे भाई यूनुस के देश से आए हो? वो कहने लगा, आप यूनुस को जानते हैं? फरमाया, कुल अंबिया हम भाई हैं, कुल अंबिया हम भाई हैं, मैं यूनुस को जानता हूं। उस वक्त वो वापस पलट के अपने मालिकों के पास गया। उसने कहा, तुम जिसे पत्थर मारते हो, जिसके साथ तुम सलूक करते हो, मैं उसे देख के आया हूं, नबूवत के आसार उस पे जलवानुमा। उसे अपनी किताबें भी पढ़ रखी थी, वो मुसलमान हो गया। अदास सहाबी रसूल मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर, वो ईसाई थे, मुसलमान हुए। तो किसी को हुस्न ने,
किसी को हुस्न ने और किसी को किरदार ने कर ली मुसख्खर, सारी दुनिया यूं शहे अबरार ने कर ली। कोई हुस्न देख के हुजूर के कदमों में आ गया, कोई हुजूर के अखलाक देख के कदमों में आ गया। और आके करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न भी वराउल वरा, आपका किरदार भी वराउल वरा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा में से ही है, जब वादा करते तो पूरा करते, जब वादा करते तो पूरा करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अपनी जुबान से जो है वो गाली नहीं दी, और हम गाली के बगैर बात ही नहीं करते। और गाली हमारा तकिया कलाम बन गया, तकिया कलाम। और कई नौजवानों को मैंने सुना पहले गाली देंगे फिर वो अगले, और अगला भी वो हंस रहा होता है, जिस तरह एक तकिया कलाम। मोमिन, हुजूर ने फरमाया लाआन नहीं होता, फहाश नहीं होता। लाआन लानत करने वाला। माँ बाप भी अपने बेटों को लानत ना करें, क्यों? पता नहीं कौन सा मकाम कबूलियत हो। ये काबा शरीफ के जो कारी हैं, कारी सुदैस हम्बली हैं, हम्बली और मसलक है। बाद लोग कहते हैं वहाबी हैं, ये भी चूंकि वो रफ़ा यदैन करते हैं, हम इधर वाले कहते हैं वो भी वहाबी है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के इमाम वहाबी नहीं है, गैर मुकल्लिद नहीं है, हम्बली और मसलक है। ये बात याद रहेगी आपको, वो क्या है? हम्बली और मसलक। कारी सुदैस साहब अपनी बात सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं छोटा था, हमारे घर में मेहमान आ गए, मैं शरारती था। मेहमान आए, वालिदा ने खाना पकाया और साथ जब उनके आगे रखा, चाय वगैरह रखी, तो मैंने हर चाय के अंदर ना नमक डाल दिया, चम्मच भर भर के नमक डाला। अब घर के अंदर मैं ही शरारती था, तो वालिदा को जब पता चला मेहमानों ने क्या चाय पीनी थी, वालिदा ने गुस्से में आके बद दुआ दे दी। और क्या दुआ दी? अल्लाह तुझे हर में मक्का का कारी बना दे, तुझे हरम का कारी बना। मकाम कबूलियत थी। तो आप अगर गुस्से में भी कुछ करें तो दुआ दे दिया करें। क्या दिया करें? दुआ दे दिया करें, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि वालिदैन की दुआ जो है वो कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और मजलूम की बद्दुआ कबूल होती है। लिहाजा मजलूम की बद्दुआ से भी बचो कि जब वो जालिम के खिलाफ बद्दुआ करता है तो अर्श तक उसकी सीधी आवाज जाती है। अल्लाह अकबर। तो बात यह है कि ये कुरान क्या बनाने आया है? हमें वली बनाने आया। ये वली बनाने वाली किताब है। आइए इसमें हम अल्लाह के वलियों की निशानियां पढ़ते हैं कि बंदे होते कौन है। आज हम हर घोड़े नचाने वाले को, कुत्ते लड़ाने वाले को, और बख्ते लड़ाने वाले को, और कुश्तियां कराने वाले को हमने वली समझा हुआ है। और नंगे धड़ंगे ढोल ढमक्के और मेले ठेले करवाने वाले, दाढ़ियां भी पूरी नहीं और नमाज तक नहीं उनको आती, और अपने आप के साथ अलकाब बकीयतुल सल्फ वल खल्फ पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं। शेखुल मशाइख, ज़ुबदतुल आरिफीन, मुहक्किकुल मुदर्रिसीन, तो पता नहीं क्या क्या है, आती जाती शाही कोई नहीं है। एक हमारे उस्ताद थे, उन्होंने अपने एक दोस्त का वाकया सुनाया कि वो इस तरह के मेले में चले गए, उनको बुलाया गया, कारी साहब आप आए तकरीर करें। उन्होंने तकरीर करने से पहले देखा वहां जनाबे वाला ढोल ढमक्के और खुसरे नाचे। अच्छा, अब उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जी आप दुआ भी मांग दें। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह साहिब मजार को खुसरे नचाने का भी सवाब दे। बाहर तो खुसरे नचा रहे थे, अब वो भड़क पड़े, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा अगर काम अच्छा नहीं तो क्यों कर रहे हो? अच्छा है तो सवाब तो जाने दो, कि कल क़यामत के दिन साहिब मजार के खाते में खुसरे नचाने का भी सवाब हो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के बंदे हैं कौन? ये सूरह फुरकान है और आखिरी रकू है। इस पूरे रकू के अंदर अल्लाह ने अपने बंदों की निशानियां बताई हैं। बंदे कौन होते हैं उसके लिए कोई खास फेस नहीं है, आदतें हैं। देखो अगर वो आदतें पाई जाती हैं तो वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली है। पहली निशानी फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे वो हैं, पहली निशानी है वो जमीन में तकब्बुर से नहीं चलते, वो आजिजी से चलते हैं। क्यों? तेरा दिता तुम दिता तेरे उत्तों वारिया। उनको पता है कि हम हैं क्या। वो एक बुजुर्ग जा रहे थे कि पहलवान ने जाते जाते इस तरह कंधा मारा, बुजुर्ग गिर गए। नौजवान जरा भारी था, पहलवान था, और गिरा के खुद ही कहने लगा तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? बुजुर्ग उठे और कहा मुझे पता है कि तू कौन है। तू गंद, तेरी इब्तिदा गंद से है, गंद के अंदर तू पला, गंद से ही तू निकला, अब भी पेट में गंद है, जब मर जाएगा फिर गंदा हो जाएगा, लोग तुझे नहला के दफना देंगे। ये हमारी इब्तिदा है। कभी हम अपनी इब्तिदा की तरफ क्या चीज है अकड़ने वाली, जरा बताइए। ये तो रब ने हमारे पर्दे रखे हुए। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे तो देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। वह इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, तकब्बुर से नहीं चलते। आगे क्या कहा? वह इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, और जब कोई जाहिल उनको मुखातब करता है, ओ मुल्ला ओ पीर, आगे 5-7 गालियां निकाल देता है, तो ये गुस्सा नहीं करते, कालू सलामा, कहते तेरे ते भी सलाम हो गए।
क्या कहते हैं, तेरे ते भी सलाम है, सलाम है यार, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो। अब पता चले अब कि बंदे कौन है। मुखातबीन जाहिलों से वो लड़ते ही नहीं है। बास ने इनका तर्जुमा किया कि जब जाहिल मुनाजरा करने आ जाते हैं तो उनको पता होता है, ना इसको उसूल का पता है, ना मुबादियात का पता है, ना अहादीस का पता है, ना इन्हें दलाइल का पता, ना माकूलात का पता, ना मनकूलात का पता। तो वो क्या कहते हैं, वो जाहिल तो होता है, तो कहते हैं बाबा सलाम हो गए, वो उससे झगड़ते ही नहीं है। इमाम गजाली अलैहि रहमा से किसी ने पूछा, आपने बड़े बड़े मुनाजरे किए, ईसाइयों से किए, मुल्हिदीन से किए, कभी कोई आप मुनाजरा, आप किसी मुनाजरे में शिकस्त भी खाई है? तो इमाम गजाली कहने लगे, हाँ एक बार मैं शिकस्त खुर्दा हो गया था, मैंने हार मान ली थी। मैंने कहा बाबा तू जीता मैं हारा। इमाम गजाली से पूछने वाले ने कहा वो कौन सा मुनाजरा? फरमाया एक गांव में एक जाहिल से मुनाजरा हो गया था, ना उसको मुबादियात का पता, ना उसूल का पता, ना ग्रामर का पता। मैं दो चार पढ़ी लिखी बातें की, वो अपनी जिद पे डटा रहा। मैंने कहा सलाम हो गया। अब मैं तुझे क्या समझाऊं? मुनाजरा हम पल्लों के दरमियान होता है। किन के दरमियान होता है? हम पल्ला, वो भी उतना साहिब इल्म हो और अगला भी उतना साहिब इल्म। और मुनाजरा नजीर से निकला है। नजीर का माना है गौर व फिक्र करना, और गौर व फिक्र वही करेंगे ना जब दोनों साहिबाने इल्म होंगे। और उसको कहेगा दूसरे को तुम्हारी यहाँ ये गलती है, तुम इस पर गौर करो, इस पर ये उसूल अप्लाई होता है, ये खुलिया अप्लाई होता है, ये दलाइल, ये आयत आती है, ये हदीस आती है, और जो तूने रवायत पेश की उसके अंदर फला फला सुकम है, फला फला जरा है। तो जब वो दलाइल देगा, और मुनाजरे में अगले को हराना मकसद नहीं होता, हक पाना मकसद होता है। हराना मकसद नहीं होता बल्कि हक पाना मकसद होता है। हमारे एक आलिम दीन थे, उनका मुनाजरा हो गया, और मुनाजरा हुआ मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी जो बंदी थे उनके साथ। और ये मद्दे मुकाबिल जो अल्लाह आलिम दीन थे हजरत मौलाना अला यार बंदे आलवी थे। अब दोनों मुनाजरे की डेट मुकर्रर हो गई। मुनाजरा था इल्म गैब मुस्तफा पर। अब वो महीना या वो हफ्ता दो हफ्ते तैयारियां की, किताबें लग गई, अवाम नास भी आ गई। मौलाना अला यार बंदे आलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला खड़े हो गए, कहने लगे गुलाम मोहम्मद घोटवी साहब, मुनाजरे से पहले मैं दो चार बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कर लीजिए। मजमे से मुखातब हुआ, कहने लगे मजमा वाला मुझे बताओ, हम दोनों मौलवियों का मुनाजरा तय हुआ है इल्म गैब मुस्तफा पर, और दिन तय हो गया, तारीख तय हो गई। मैं पूरा हफ्ता डेढ़ अपने शागिर्दों को जगाता रहा, ये अपने शागिर्दों को जगाता रहा, मैं भी सारी सारी रात जागता रहा, ये भी सारी सारी रात जागता रहा, मैं भी किताबें खंगालता रहा, ये भी किताबें खंगालता रहा, मैं सारी रात ढूंढता रहा हुजूर को ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये सारी सारी रातें ढूंढता रहा कि हुजूर को ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता। मुझे बताओ उम्मतियों ने कहा कि मैंने अदा किया कि इसने किया? बताओ उम्मतियों ने कहा कि किसने अदा? बस वही दिल की कली खुलने वाली और दरवाजा खुलने वाली घड़ी थी। मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी का दिल खुल गया, कहने लगे मजमे वालों अब सारे गवाह बन जाओ, मैं तौबा करता हूं और मैं फिर से मुसलमान होता हूं। और फिर मुसलमान ऐसा हुआ ना, गुलाम मोहम्मद घोटवी फिर भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वहां से आता है गोलड़ा शरीफ में हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह का मुरीद होता है। बात समझ आ रही है? तो कोई कोई वक्त होता है कि जब दिल की कलियां खुल जाती हैं। तो जब जाहिल मुनाजरा करते हैं तो वो कहते हैं सलाम हो गए। कितनी बातें होगी वलियों की? दो। एक तो जमीन में अकड़ के नहीं, मैं शेखुल मशाइख, मैं फलाना, मैं दगाना, नहीं, वो आजिजी से चलते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। दूसरा, वो जब जाहिल मुनाजरा करते हैं, मुखातब होते हैं, गालियां देते हैं, वो गाली का जवाब गाली नहीं देते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया उनकी रातें अपने रब के आगे सजदों और क़याम में गुजर जाती हैं। रातों को वो उठते हैं, सारी रात वो सोए नहीं रहते, रातों को उठते हैं, उठ के अपने रब को मनाते हैं, सजदा करते हैं, सजदों में रोते हैं और क़याम करते हैं। सैयदा खातून जन्नत, लाखों सलाम हो उस खातून पे, सारी सारी रात सजदों में गुजर जानी, सारी सारी रात क़याम में गुजर जानी और कहना अल्लाह कोई तो राहत लंबी बना, तेरी बंदी तुझे जी भर के सजदा कर ले। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में, और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बारे में, हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा के बारे में, हजरत शेखुल मशाइख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुहानी के बारे में आता है, सारी सारी रात जागा करते थे, सारी सारी, हत्ता कि वो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे। इशा के वजू से फजर की नमाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकत पढ़ा करते थे। हजरत अबू हुरैरा 1000 रकत पढ़ा करते थे। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों का हाल यह था, एक मरतबा आपकी कुटिया को आग लग गई, लोगों ने देखा आग भड़क गई है तो लोग बुझाने लगे, किसी के पास जो पानी था, बाल्टी थी, जो भी था, बुझा रहे हैं और साथ पुकार रहे हैं कि या अली बिन हुसैन बात तशरीफ लाइए। आप नमाज में मशगूल। जब आपने सलाम फेरा, आग बुझी हुई, आप लोगों का मजमा देखा, फरमाया क्या हुआ है? उन्होंने कहा हजरत
आपकी कुटिया को आग लगी, हम आपको आवाज देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मदीना मुनव्वरा में घर देख के आया हूं। आप 365 नंबर गेट से आप जाएंगे मस्जिद नबवी शरीफ से, तो जिधर म्यूजियम है बना हुआ और स्टेशन जो बनाया गया है, इन्होंने बनाया था उस्मानी दौरे हुकूमत में, उस साइड पे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सादा है, ना कोई महल है ना कोई कुछ है, 2 कमरे हैं, साथ एक कुआं भी है जहां से पानी निकाला करते थे। अल्लाह अकबर, ये मदीना मुनव्वरा से बाहर इन्होंने डेरे लगा लिए थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबो बला के बाद फिर सारी जिंदगी रोते गुजरी आपके। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब देखा कि ये अपना फरमाया आप क्यों आए, उन्होंने कहा जी आग लग गई, हम आपको आवाज देते रहे लेकिन आपने नहीं सुनी। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वल्लाह तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नुम की आग बुझा रहा था। उनकी रातें रब को मनाते गुजरती हैं, रब के आगे सजदा करते गुजरती है, रब के आगे कयाम में गुजरती है। और वो सारी सारी रात जो हाफिज है तो तलावत करते हैं, कुरान शौक से पढ़ते हैं, वरना सजदे में गिर के सुबहान रब्बी अल आला कहते हैं। कितनी निशानियां हो गई? 3। चौथी निशानी फरमाया वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और वो कहते हैं अल्लाह हमसे जहन्नुम का अजाब फेर दे, हमसे जहन्नुम का अजाब फेर दे। कोई बंदा ऐसा नहीं है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कोई बशर ऐसा नहीं है कि जो जहन्नुम से नहीं गुजरेगा, हर एक जहन्नुम से गुजरेगा। किसी को जहन्नुम लपेटे में ले लेगी और किसी से जहन्नुम खुद पनाह मांगेगी, बंदा मोमिन निकल जा, तेरे नूर ने मेरी नार को ठंडा कर रखा है। कोई ऐसा होगा जिसकी ईमान की तपस से खुद जहन्नुम पीछे हटेगी, और कोई ऐसे होंगे जिनको आग लपेटे में ले लेगी। हर एक गुजरेगा कहां से? जहन्नुम से गुजरेगा। और वो कहते हैं अल्लाह हमसे जहन्नुम का अजाब फेर, इन अजाब हा कान गरामा, जिसको तेरा अजाब लपेट लेता फिर लपेटने वाला ही होता है, दूर होने वाला नहीं होता, गले को पकड़ लेता है, फंदा बन जाता है। ये दुआ करते हैं, वो दुआओं से बेनियाज नहीं होते। जब अल्लाह के बंदों के पास आप दुआ के लिए जाते हैं, उनके दुआ का अंदाज क्या होता है? आप गए कि मेरी बख्शिश की दुआ कर दें, मुझ पे अल्लाह करम फरमा दे, वो ये नहीं कहते अल्लाह इस पे करम कर, अल्लाह इस पे इसकी बख्शिश कर दे, अल्लाह इसके गुनाह माफ नहीं, वो कहते अल्लाह पहले मेरे माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, इनको भी बख्श दे। वो कहां से शुरू करते हैं? अपनी। अब दुआ देखें जो हम नमाज के एंड पे पढ़ते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह हमें बख्श दे और हमारे माँ बाप बाद में, और कुल मोमिनीन बाद में, पहले किसकी? अपनी। और ये दुआ किसी आम वली वगैरह की नहीं है, ये अल्लाह के खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। पहले कहां से शुरू किया? अपने से शुरू किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बिग़फ़िर ली वाली वालिदैया। हज़रत नूह नबी कह रहे हैं अल्लाह पहले मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, वलिल मोमिनीना वलिल मोमिनात, सारे मोमिन मर्दों को भी बख्श दे, सारी मोमिन, और वाली मन दखल बैतिया मोमिना, अल्लाह जो हालत ईमान में नूह के वेड़े में भी दाखिल हो जाए उसे भी बख्श दे, जो हालत ईमान में नूह अलैहिस्सलाम के घर आ जाए, मेरे घर आ जाए, उसे भी पता चला नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा बख्शिश का बेड़ा है, मगफिरत की, ये मगफिरत के घर है। कई घर बख्शिश और जन्नत के घर होते हैं। अल्लाह अकबर। ये कितनी बातें होंगी भी? 4। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, बेशक जहन्नम बुरा ठिकाना है। आगे फरमाया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। इरशाद फरमाया कि जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते कि बिल्कुल ही हर शहर उड़ा देती, ऐसा भी नहीं करते, और बिल्कुल तंगी भी नहीं करते, ना कंजूस होते हैं, बल्कि इसके दरमियान दरमियान रहते हैं। मियाना रवि, हर चीज में क्या होनी चाहिए? मियाना रवि। हुजूर जाने दो आलम वसल्लम मियाना रवि को पसंद किया करते थे। खैरुल उमूर औसातुहा, और मैं सबसे बेहतर काम यह है जो दरमियाना होना चाहिए, ना ही हद से इधर बढ़ जाए, ना ही हद से, अकीदे में भी दरमियाना पन है। मसलन ना किसी वली की, अल्लाह के प्यारे की दुश्मनी हो और ना ही मोहब्बत में अन्ने हो जाए, उसे नबी और गौस और कुतुब कहते कहते खुदा या खुदा इसके अंदर चला गया, अब ये खुदा का रूप धार गया, मैं इनू सजदा करा ते जिवें खुदा नू सजदा करा ते कवाला ठप 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 ते मुरीद पैसे दी पैसे दा। वो खुद भी गुमराह, अगलों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। हमने नफरत भी नहीं करनी और मोहब्बत में हाद से भी नहीं बढ़ना, ये बात याद रखे। खुद मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत की रवायात है, और खुद उन्हीं की किताबों के अंदर है, उन्हीं की किताबों के अंदर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। एक कौम ने बुग़्ज़ रखा वो भी जहन्नमी हो गए, एक मोहब्बत में हद से बढ़ गया वो भी जहन्नमी होगा। तो हम क्या करेंगे भाई? मोहब्बत करेंगे, नफरत भी करेंगे, लेकिन हद से बढ़ाएंगे भी नहीं। बंदा बंदा है, वली वली है, नबी नबी है, फरिश्ता फरिश्ता, खुदा खुदा है, किसी को किसी का मकाम नहीं देंगे।
तो इस ये अकीदे में भी दरमियानापन, खर्च में भी क्या होना चाहिए, दरमियानापन। बिल्कुल हर चीज रोड़ रोड़ा के, अब सखावतों की वाली चले भी हर चीज दे दी, और इधर जो है वो फिर बाद में मांगता फिरा। या तो इतना फिर बंदे के पास तकवा होना चाहिए और इतना फिर फना फिल्ला हो जाए कि हजरत शेख शिबली से किसी ने पूछा, हजरत ज़कात कितनी देनी है? फरमाया ज़कात की दो किस्में हैं, एक ज़कात शरीयत की है, एक ज़कात इश्क की है। कहा हजरत शरा की ज़कात क्या है? फरमाया 40 में से एक देना, 40वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये शरा की ज़कात। उसने कहा जी इश्क वाली? फरमाया 40 के 40 भी दे देना, फिर यार को तकना, यार चाहता क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब यार चाहता क्या है, यार की मर्जी क्या है? हर शय दे देना, ज़कात कुछ पल्ले ना रखना, और फिर देखना कि यार की मर्जी क्या है। तो पूछने वाले ने कहा हजरत इस ज़कात को भी किसी ने दिया है? फरमाया यार गार अबू बकर ने यही ज़कात अदा की थी। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अब कई तुलहुमुल्लाह व रसूला, आका ने पूछा, बंदा नवाज ने पूछा, हुजूर ने पूछा, गरीब नवाज ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा मैं उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया। लेकिन बाद में किसी के आगे तली भी नहीं की, ये भी याद रखना, तली नहीं की बल्कि मजदूरियां की, फिर बेनियाज हुए, खुद मेहनतें की, फिर तिजारत के पकड़ी, फिर जनाबे वाला शराकतदारी की, और ये सारे काम भी किए। लेकिन अगर कोई इतने मकाम पे पहुंचा है तो ठीक है, वो वरा उल वरा है, लेकिन आम बंदों की हालत क्या है कि वो इसराफ न करें। आगे क्या फरमाया, वल्लदीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा भी नहीं करते, वो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और वह नाहक किसी को कत्ल भी नहीं करते। जिनको कत्ल करना हराम है उनको कत्ल नहीं करते, सिर्फ कत्ल जब भी करते हैं हक के लिए कत्ल करते हैं। कुछ कत्ल जायज है। नंबर 1, जंग में दुश्मन को कत्ल करना, ये क्या है? जायज है, खा वो दुश्मन कलमा गो हो या काफिर हो, लेकिन हालत जंग में आया है, बागियों को भी इसके अंदर शामिल है। तो हालत जंग में दुश्मन को कत्ल करना, ये एक कत्ल हो गया। दूसरा, कातिल को कत्ल करना, कत्ल की सजा क्या है? बोलिए ना, मैं कत्ल, कातिल को कत्ल करना, ये दूसरा हक है। तीसरा, शादीशुदा जानी, उसको कत्ल करना संगसार करके, पत्थर मार मार के, ये शरीयत ने सजा मुकर्रर की। कितने कत्ल हो गए? 3। चौथा, मन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जो इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया और उसका इर्तिदाद मुआशरे के अंदर बदअमनी का सबब बन रहा है, शरीयत कहती कि इसको कत्ल कर दिया जाए। कितने कत्ल जायज है भाई? 4। फिर मैं यही हक वाले कत्ल करते हैं, ना हक किसी को कत्ल नहीं करते। यहां हमारे यहां क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और देखा जाता है अंदर बच्चा है या बच्ची है, बच्ची है जी, बस मेडिसिन दो या कोई हथियार उसे इसको जाया कर दो। 4 महीने बाद उस हमल के अंदर जान आ जाती है, उसको निकालना उसका कत्ल है, उसका क्या है? कत्ल है। अब वो जो करवा रहा है वो भी कातिल है, जो करवा रही है वो भी कातिला है, और जो दाई कर रही है वो भी कातिला है। तो समझ दिया कि मैंने पैसे लिए, बस अच्छा काम मैंने कर दिया। कई ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो मुंह काला किया होता है, फिर वो इज्जतें बचाने के लिए लड़की और औरत जो है वो दाइया से कंप्रोमाइज करती है और वो कत्ल कर देती। एक तो जुर्म किया, दूसरा ये किया। तो कत्ल सबसे बड़ा गुनाह, और इतना बड़ा गुनाह है कि कयामत के दिन मकतूल अपने कातिल का सर पकड़ के अल्लाह की बारगाह में लाएगा। अल्लाह इससे पूछ, इसने मुझे कत्ल क्यों किया? तो अल्लाह उससे नहीं पूछेगा कि तूने कत्ल क्यों किया, बल्कि पूछेगा इसने किस बादशाह के जमाने में कत्ल किया। बादशाह को धर लिया जाएगा। तुम समझते हो बादशाहियां आसान है? तुमसे तो सारे मुल्क के कत्ल पूछे जाएंगे। इसलिए तो सहाबा इकराम की खुलफाए राशिदीन की नींदें उड़ गई थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की नींदें उड़ गई जब उन्हें कहा आप बादशाह बन गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हाथ पे बैयत हो रही थी और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बेहोश थे। और जब आप होश में आए, खलीफा मुकर्रर हो चुके, बाहर 50-60 घोड़ों की लाइनें लगी हुई हैं। आपने कहा ये घोड़े काहे के? उन्होंने कहा जी ये शाही घोड़े हैं, आपका प्रोटोकॉल। फरमाया जिन पांव से उमर आया है ना, उन्हीं पांव से घर जाएगा। फिर 2 साल तक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने गवर्नमेंट की, खाना पीना छूट गया, रातों को उठ उठ के अपने आप को ज़दोखौर करते, उमर
अब तेरे ऊपर अल्लाह के भी हक हैं, बीवी बच्चों के भी हक हैं, पूरे मुसलमानों के भी तेरे ऊपर हुकूक है, रियाया के भी हुकूक है, गफलत ना करना। और आपकी बीवी फातिमा बिनत अब्दुल मलिक कहती है उन 2 सालों के अंदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब वापस बादशाह बन के आए ना, तो आपने कहा मुझसे बंदों के भी हुकूक मेरे सर पे आ गए हैं, लेकिन मैं या तू मुझे अपने हक माफ कर दे या मैं तुझे तलाक देता हूं, तू इज्जत के साथ अपने मेके चली जा, मुझसे अब तेरे हक नहीं अदा होंगे। कहते हैं मैंने अपने हक माफ किए। 2 साल तक उमर बिन अब्दुल अजीज पे गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। और यहां आप देख रहे हैं जो शाह खर्चियां हो रही हैं, जो उससे पूछा जाए हुक्मरान से तेरे कावानीन किधर गए, तेरी वो हिफाजत का महकमा किधर गया, ये कत्ल क्यों हुआ है? वला यसनून, और वो जिना भी नहीं करते। वो क्या? अल्लाह के बंदे जिना नहीं करते। वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामा, जो ऐसा करेगा फिर उसे सख्त जो है वो अजाब दिया जाएगा। युदाफ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामत, उसका अजाब दुगना तिगना क़यामत के दिन किया जाएगा। वह यखलुद फीहा मुहाना, और वो हमेशा हमेशा जलील रहेगा। जो कत्ल करता है, जिना करता है, शिर्क करता है, वो जहन्नुम में रहेगा और जलील रहेगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन, मगर वो जिसने सच्ची तौबा कर ली, गुनाह किए सारा, अब उसने क्या कर ली? तौबा। आओ अल्लाह की बारगाह में आज तौबा करते हैं, आज ऐदे वफा करते हैं, जो हो गया अल्लाह वो माफ कर दे। इंशाअल्लाह आइंदा हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। जी इंशाअल्लाह तो आप कह सकते हैं ना, इंशाअल्लाह कहने से अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहीं वो बिल्ली बाहर आके कहे, ये ना कहे जैसे मैंने तुझे पहले छोड़ा था अब तू वैसा ही है, तुझे रमजान ने क्या दिया। करेंगे भाई? हाँ जी, नमाज छोड़ेंगे नहीं, रोजे नफली भी रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने माह रमजान के सारे रोजे रखे और 6 शव्वाल के रोजे रखे, अल्लाह उसको पूरे साल के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह अब हुजूर हफ्ते के दिन भी रोजा रखते थे, इतवार को भी रोजा रखते थे, पीर को भी रोजा रखते थे, जुमेरात को भी रोजा रखते थे। कितने रोजे हो गए हफ्ते में? 4। हफ्ते का क्यों? फरमाया यहूदियों की ईद है, वो खाते पीते हैं, मैं मुखालफत करता हूँ। ईसाइयों की ईद इतवार है, वो खाते पीते हैं, मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। पीर फरमाया वुलिदतु फीह, पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ, अपना मीलाद मनाता हूँ। और जुमेरात फरमाया जुमेरात को अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, मैं चाहता हूँ जब मेरा अमल पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। रखेंगे भी रोजा, ये नफली रोजा रखा करें, और नहीं तो हफ्ते महीने में 3 रोजे रख लिया करें, 13, 14, 15 चांद का, 13, 14 अय्याम बीद। और ये सुन्नत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। बाबा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते? 3। और अगर और ज्यादा कोई रखना चाहता है, शौक से रखना चाहता है, क्योंकि रोजों से नफ्स जो है वो टूटता है, तो जो हुजूर ने पसंद किया वो ये, एक दिन बंदा रोजा रखे, दूसरे दिन ना रखे, तीसरे दिन रखे, चौथे दिन ना रखे, एक दिन छोड़ दे, एक दिन रखे। फरमाया ये सारे रोजों में बेहतर रोजे हैं, और ये रोजे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। किन के रोजे हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ऐसे रख, इसमें आप फिट भी रहेंगे, सेहत भी बनी रहेगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब भी नसीब होगा। तो फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, जिसने तौबा की और ईमान लाए और अच्छे अमल किए, फरमाया हम उनकी बुराइयों को भी नेकियों में बदल के रख देंगे। जो बुरे काम थे वो भी नेकियां बन जाएंगी, लेकिन हो सच्ची तौबा। जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई, दिल से पढ़ना है कि अल्लाह अब मैं बाज आया, अब मैं बाज आया। वकान अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जिसने तौबा की और अमल साले किया, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ तवज्जो फरमाता है, और खूब तवज्जो फरमाता है। ये मोमिनों की फिर बंदों की निशानियां, फिर वलियों की निशानियां। नंबर 1, वो जमीन में अकड़ के नहीं चलते। नंबर 2, जब जाहिल मुखातब होते हैं तो वो झगड़ते नहीं, कहते हैं सलाम। तीसरा, वो अपने रब के आगे सारी रात बंदगी में होते हैं। अच्छा, अगर किसी को सारी रात मुयसर ना आए, वो इशा की नमाज जमात से पढ़े और फजर की पढ़े, उसको सारी रात की बेदारी का सवाब दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आयत के तहत कहते हैं जिसने इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़े, वो ऐसे ही है जिस तरह उसने सारी रात शब-ए-दारी की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात आखिर में 2 नफल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वो ये सबूत है कि ताकि हमें सारी रात की शब-ए-दारी का भी सवाब मिल जाए। वो किसी जगह पे मुझसे मसला पूछा, जी फर्ज सिर्फ पढ़ने चाहिए, आप नफलों को और सुन्नतों को ये मौक़दा ये गैर मौक़दा बड़ी तकीद करते हैं, क्या वजह है? मैंने कहा हम नहीं तकीद करते, हमने ये सुना और पढ़ा है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने दिन रात में 12 सुन्नतें अदा की, 12 रकतें अदा की, कितनी? 12 रकतें अदा की, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बना देगा। अब ये 12 रकतें कौन सी हैं? फर्जों के अलावा 12 रकतें। फजर की पहली 2 सुन्नतें, जोहर की पहली 4, कितनी हो गई? 6। फिर जोहर की नमाज के बाद 2 सुन्नतें, कितनी होगी? 8। मगरिब के बाद 2 सुन्नतें 10। इशा की नमाज के बाद 2 सुन्नतें मौक़दा
12. میں نے اسے کہا اگر آپ کا جنت میں جانے کا پروگرام نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا حمارا تو پروگرام ہے. وہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے, بھئی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم جنت میں آسانی کے ساتھ چلے جائیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں ایسے بندے نہ بتاؤں جو بغیر حساب کے ہی جنت میں چلے جائیں. ان میں ایک بندہ حضور نے ارشاد فرمایا والذی تتجافا جنوبہم الی المضاجع من المضاجع, فرمایا جو راتوں کو اپنے بستر سے اٹھ کے اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں, تہجد کی نماز ادا کریں. اٹھیں گے بھائی, اٹھیں تہجد پڑھیں, فرمایا یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور اس کے ساتھ حضور نے 3 اور بندے بتائے, فرمایا ان طالب العلم, دین کا اسٹوڈنٹ دین سیکھتا رہتا, بڈھا بھی ہو گیا دین سیکھتا رہتا ہے, یعنی ہمیشہ وہ طالب علم ہی رہتا ہے. فرمایا اسی حالت میں مر گیا اللہ اس سے حساب نہیں لے گا. دوسرا ارشاد فرمایا ان طالب العلم والمرأة المطیعة لزوجها, اپنے خامند کی فرما بردار بیوی, اس کو خوش اس نے کیا, اس کے کپڑے وغیرہ ہر چیز گھر کے اندر ہی اس نے زندگی گزاری, اس کو دکھ نہ دیا, اس کو تنگ نہ کیا, ناجائز مطالبات نہ منوائے, اس کی غربت امارت میں خوش رہی حتیٰ کہ خامد اس سے خوش تھا. فرمایا یہ بی قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے گی. چوتھا ارشاد اسی حدیث میں تیسرا اور چوتھا بندہ, فرمایا والولد البار بوالدیہ, اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا, اپنے والدین کا فرما بردار. قربان جان بیٹی نہیں کہا کیونکہ بیٹی اگلے گھر جاتی ہے, بیٹی اگلے گھر جا کے دلہن بنے گی اور عورت بنے گی, اور وہ بیوی بن کے اپنے خامد کی کرے گی خدمت. اس پر پھر ماں باپ کے حق کیا ہو جاتے ہیں, ساقط ہو جاتے ہیں. اب کس کے حق آ جاتے ہیں, شوہر کے آ جاتے ہیں. اور بیٹے کے اوپر دلہن بھی آ جائے, 4 دلہنیں آ جائیں, ماں باپ کے حقوق کی ساقط ہے نہیں ہوتے, وہ اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں. فرمایا یہ بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور ایک اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا, یہ بخاری شریف میں, فرمایا وہ برا شگون نہیں کرتے. برا شگون کیا ہے, ہم جا رہے ہیں راستے میں کالی بلی نکل, وہ آج تک کم ہونا ہی کوئی نہیں, یہ برا شگون ہے. ٹھیک ہے, آپ جا رہے ہیں آپ کے اوپر کوے نے بیٹ کر دی, بس آج تک کام خراب ہی ہو گیا, یہ برے شگون ہے. فرمایا وہ برا شگون نہیں لیتے, وہ اچھا شگون لیتے ہیں. ایک دوسرا فرمایا وہ دم نہیں کرواتے. کون پھنس گئے ہو, ہاں جی, دم نہیں کرواتے. اس دم سے مراد ہے غیر شرعی دم. شرعی دم خود مصطفیٰ نے بھی کیا ہے. اب دیکھنا انہوں نے پڑھ کے نا انی حدیث تانوں 10 دینا, دم نہیں کرانا. ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن و حسین کو مصطفیٰ آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس روزانہ پڑھ کے حضور دم کیا کرتے تھے. اس سے ہے غیر ضروری, وہ غیر شرعی دم, ورنہ حضور نے دم بتائے ہوئے ہیں. ایک صحابی ہیں, چلے سن لیں, حضرت انس بن مالک گرفتار ہو گئے, اور گرفتار حجاج بن یوسف ظالم کے ہاتھ, اس کے دربار میں کھڑے ہیں. اس نے کہا انس تیار ہو جا, تمہاری گردن اڑانے لگا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں تو شام تک میری گردن نہیں اڑا سکتا. اس نے کہا کیسے, کیوں نہیں اڑا سکتا, میرے پاس سارے اختیار ہیں. کہا تیرے پاس سارے اختیار ہیں پر اللہ کل شیء قدیر کوئی اور ذات ہے. مجھے حضور نے ایک وظیفہ بتایا ہے, میں صبح پڑھ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا انس صبح پڑھو شام تک محفوظ رہو گے, شام کو پڑھو صبح تک محفوظ رہو گے, جب شام آئے گی میں پھر پڑھ لوں گا. اب وہ حیران, تھوڑی دیر بعد سوچتا رہا, کہنے لگا یہ وظیفہ مجھے نہیں بتاتا. پھر میں تجھے نہیں بتاؤں گا. اور حضرت انس بن مالک جب وفات پانے لگے تو اپنے شاگرد کو وہ وظیفہ لکھوایا, حضرت ثابت بنانی کو, پھر انہوں نے پوری امت کو وہ وظیفہ بتایا. بسم اللہ علی دینی و نفسی, بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی, بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, وعز وجل واعظم مما خاف وزجارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. آپ گوگل پہ لکھیں گے نا دعائے انس, آگے یہ آ جائے گی دعائے انس, یہ آپ لکھیں یہ آگے آ جائے گی. آپ صبح پڑھیں شام تک محفوظ, شام پڑھیں صبح. آپ جنوں سے بھی محفوظ ہوں گے, شیطانوں سے بھی محفوظ ہوں گے, جابر حکمرانوں سے بھی محفوظ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو کس سے مانگنا ہے بھائی, اللہ سے. وسیلہ دیں سرکار کا, اور جو سب سے بہتر وسیلہ ہے صحابہ کا وسیلہ دیں, اہل بیت کا وسیلہ دیں. مانگنا کس سے ہے, اللہ سے مانگیں. والذین لا یشهدون الزور, اور وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے. اب ہم تو خیر کسی کی بھی نہیں نہ دیتے, کہ دیتے ہیں جھوٹی گواہی, بلکہ دیتے ہیں 5 سال بعد جب الیکشن آتا ہے, چلو ووٹ. یہ ووٹ کیا ہے, یہ گواہی تو ہے کہ ہمارے علاقے کا یہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے. یہ ووٹ دینا یہ کیا ہے, گواہی ہے. اور والذین لا یشهدون الزور,
और वो झूठी गवाही नहीं देते। अगर आपके इलाके में कोई अच्छा नहीं खड़ा, आपके सर पे कोई तलवार लटक रही है, बैठ जाए। अगर कोई दियानतदार ईमानतदार खड़ा है और आप जानते हैं, लिल्ला फिल्ला जानते हैं कि ये हमारे इस्लाम को तकवीयत देगा, आगे जो है वो इस्लाम की पावर बनेगा, फिर उसको वोट दें। कयामत के दिन ये गवाही आपके काम आएगी। और जो जालिमों के साथ है और फिर जुब्बे कुब्बे पहने और लाखों मुरीद है, हम उसे पीर नहीं मानते, क्योंकि रब भी उसे पीर नहीं मानता। वो झूठी गवाही नहीं देते। वाइजा मर्रू बिल लगवे मर्रू किरामा, और जब बुरी जगह से गुजरते हैं ना तो बड़ी इज्जत बचा के गुजर जाते हैं। वहां फंस नहीं जाते, वहां टीवी लगा हुआ, वो टीवी देखने नहीं लग जाते। सिनेमा घरों से भी वो निकल जाते हैं, कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। और जहां साहबा की गुस्ताखियां होती हैं वहां भी कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। वो वहां ठहरते ही नहीं है जहां रब की लानतें उतरती हैं, रब की तरफ से गजब उतरता है, फरिश्ते लानतें करते हैं, वो लानत वाली जगह पे खड़े अपनी इज्जत बचा के निकल जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और जब उनके रब की आयतें उन्हें याद कराई जाती हैं, जब उनके रब की आयतें याद कराई जाती हैं, पढ़ के बताई जाती हैं, अल्लाह के बंदे ये कुरान में लिखा है, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, तू किधर जा रहा है? लम यखिरु अलैहा सुम्मन व उमयाना, वो कानों में उंगलियां दे के और आंखें बंद करके भागते नहीं है, वो सरे तस्लीम खम करके रो पड़ते हैं। ये किन की निशानियां है? अल्लाह के बंदों की खशियत कल्बी आ जाती है, यार मैं अपना किरदार देखूं, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और वो ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें नेक बीवियां अता फरमा, हमें नेक बच्चे अता कर, ऐसे बच्चे बीवियां हो जिनसे हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, और हमें गुमराहों का नहीं, हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। हमें किन का इमाम बना? परहेजगार। ये है इबादुर रहमान, रब के बंदे।